And of course, now we're getting you a latest breaking update, which is that another CCTV footage has been accessed by NewsX, which is showing Omar's movement, and he can be seen driving an I-20 car. So you have those visuals up on your screens. We're showing you that CCTV footage right now. And this, viewers, is a clip which is just before he goes to the ATM kiosk. And this is the ATM kiosk is in Nuh. So this is, of course, CCTV footage. There you can see the car moving in that. And now, of course, I have my colleague Asavri Jindal joining me with more details. Asavri, please elaborate. Right, absolutely. You know, of course, the probe is going on, and at this point in time, a new CCTV footage has surfaced where we can, of course, see the I-20 car that inevitably blasted in New Delhi's Red Fort over there. This CCTV footage has been captured approximately 18 hours before that blast took place. It's been reportedly taking place at 1:23 a.m. I beg your pardon. And the I-20 car is near the HDFC ATM on Biwa Road in Firozpur, Jhirka in the Nuh district of Haryana. So what we can essentially see in this video is a man moving out of the car. He's gone to the ATM that's over there to withdraw money, and the person who was sitting in the car can of course be seen moving out of that lane, and of course then we can't see that visual over there. After that it's completely dark for us. But again, what we can see in this, the man who's just headed out of the car has of course covered his face. He's wearing a beanie, his face is covered, and the agenda over there was to essentially get money from the ATM. From the information that we've been tracking, as per our sources, it was rupees 50,000 that he wanted to get from the ATM, but they were not able to get that money because there was no money at that ATM, as per the information that we've received from our sources. Back to you. All right, Asavri, thanks for those details. Now, well, Section 163 has been imposed in Faridabad, Haryana, amid a heightened alert following the Delhi bombings. The order has been officially issued by the Deputy Commissioner, Vikram Singh. The police investigation has also been expanded, and I have my colleague Devendra Kaushik joining me with more details. Devendra, क्या बता सकते हैं आप हमें? देखिए, जिस तरह से I-20 कार अलफला कॉलेज के गेट पर सीसीटीवी में साफ तौर से दिखाई दे रही है कि 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर की सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि 29 अक्टूबर को ये गाड़ी खरीदी गई थी वैशाली, और उसी दिन ये अलफला कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इसको ले जाया गया था। तो एक सीसीटीवी सामने आई है। इसके साथ साथ में क्योंकि जिस तरह से आतंकी मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर ये अलफला यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उसकी इनकी गिरफ्तारी डॉक्टर शाहीन शाहिद की और डॉक्टर मुजम्मिल की, तो उसके बाद में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो हाई अलर्ट पर हरियाणा पूरी तरह से, खासतौर से फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है यहाँ हाई अलर्ट पर है। पुलिस की तरफ से रोजाना सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो कीटनाशक दवाइयां बेचने वाली जितनी भी दुकान है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट काफी भारी मात्रा में फरीदाबाद से 2 जगह से बरामद हुआ था। तो ऐसे में जांच में सामने आया है कि जो खाद की दुकानें हैं वहीं से उसने इसको कलेक्ट किया था। तो ये तमाम अलग अलग जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, चाहे क्राइम ब्रांच हरियाणा हो, फरीदाबाद हो, ये अलग अलग एंगल से जांच में जुटी हुई है और पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर और खासतौर से फरीदाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जी बने रहिए देवेंद्र। Now, police officials have continued their investigation at Hidayat Colony in Nuh district of Haryana in connection with the Delhi terror blast case. This comes after the link of Omar living in a rented accommodation in Hidayat Colony emerged. देवेंद्र, ये जो नई जानकारी हमारे पास आ रही है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर उमर की बात करें तो उमर को लेकर कई सीसीटीवी कैमरे सामने आए हैं। चाहे I-20 कार की बात करें, क्योंकि I-20 कार जिस तरह से अलफला कॉलेज में ले जाएगी, उसके बाद में उसको जब दिल्ली में 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ था तो बताया जा रहा है कि वो नुहू से उस गाड़ी को लेकर निकला था, उसी में विस्फोटक रखा हुआ था। और ऐसे में क्योंकि एक टोल बैरियर पर वहाँ
उसकी सीसीटीवी सामने आई थी। उसके बाद फरीदाबाद की लोकेशन पर गाड़ी दिखाई दी थी और बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली जाते हुए गाड़ी उमर ले जाते हुए साफ तौर से देखा गया था। तो इसको लेकर क्योंकि अलग अलग तरीके से जांच की जा रही है और कहाँ कहाँ वो रहा था, बताया जा रहा है कि 5 दिन नहूम के किसी गाँव में वो रुका था, वहाँ उसने किराए पर लिया था, जिसने किराए पर दिलवाया था वो भी इलेक्ट्रीशियन का काम अल्फला मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। उसी ने अपनी साली के वहाँ रिश्तेदार के यहाँ एक कमरा किराए पर दिलवाया था। तो ये कई चीजें जांच में अब सामने धीरे धीरे पर्दे खुलती जा रही है मामले की, और इसमें हो सकता है कि और भी जो साथ जिन लोगों ने दिया हो, क्योंकि पहले दिन से ही ये मानकर चला जा रहा था कि यहाँ रहकर उनको स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। तो वैसे में जो स्थानीय लोग हैं, चाहे लोगों की बात करें, चाहे मोहम्मद इश्तियाक की बात करें, जो मौलवी था वो भी यहीं का रहने वाला है, तो इनकी तरफ से उनकी मदद की गई थी। तो ऐसे में अब ये जो जांच का दायरा है ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देवेंद्र, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। एंड नाउ वेल, एज पर sources, a West Bengal resident currently lodged in the presidency jail is being interrogated by the National Investigation Agency in connection with the Delhi car blast attack case. Sabir Ahmed, a resident of Palashi Para's Bara Naldaha in West Bengal's Nadia district, is lodged in the presidency jail under the Anti-Narcotics Act. The security officials under the state and central directives have been interrogating Ahmed repeatedly in jail. According to the sources, along with this, his brother Faisal Ahmed was also taken into custody by the Special Task Force for questioning on Thursday night in connection with the terror network. And I have my colleague Renik Datta joining me with more details. Renik, आप और क्या जानकारी दे सकते हैं हमें? एकदम देखिए, जो ब्लास्टर से उस केस में जब इन्वेस्टिगेशन जारी है उसी टाइम पर सबीर अहमद को पूछताछ किया गया है। जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि एनआईए का एक टीम पहुंचा था प्रेसिडेंसी जेल में, जिस जगह पर नोदिया डिस्ट्रिक्ट का पलाशीपारा एरिया का बासिंदा जो रेजिडेंट है सबीर अहमद, वो जेल में बंदी है और उसको एंटी नार्कोटिक्स एक्ट में बंदी किया गया था। उनको ही पूछताछ किया गया है एनआईए की तरफ से। एनआईए के सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि इनके साथ जो टेरर नेटवर्क उसका कनेक्शन हो सकता है और इसी इन्वेस्टिगेशन में इनका नाम सामने आया है, तो इसी वजह से उनको पूछताछ किया गया है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले पर ये सबीर अहमद का जो ब्रदर है फैजल अहमद, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया है स्पेशल टास्क फोर्स ने। स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से थर्सडे नाइट को इनको नदिया डिस्ट्रिक्ट से इनको हिरासत में लिया गया था। फैजल अहमद को इन्वेस्टिगेशन के अंदर में टेरर नेटवर्क का कनेक्शन इनके साथ हो सकता है, इसी लिंक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया था। यानी नदिया डिस्ट्रिक्ट का नाम भी अभी सामने चला आ रहा है। पलाशीपारा एरिया का जो सबीर अहमद, उनको एनआईए की तरफ से एक तरफ पूछताछ किया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एसटीएफ की तरफ से उनका जो ब्रदर फैजल अहमद, उनको भी पूछताछ किया जा रहा है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट केस में।